السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانس اکیڈمی کے اس تعلیمی چینل میں آپ سب کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج جو پرچہ ہوا ہے ہسٹری اینڈ پولیٹیکل کا 10ویں جماعت کا، اس کا پرچہ آج ہم حل کریں گے، اور آپ سب ٹیلی کیجئے کہ آپ نے کس طرح سے آنسر لکھا ہے۔ امید ہے آپ نے بہت اچھا پیپر حل کیا ہوگا، بہت آسان پیپر تھا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پرچہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کو یہ 2020 مارچ ہسٹری اینڈ پولیٹیکل کا، اور یہاں پر سب سے پہلے ہدایت لی گئی ہے، اور سب سے پہلی جو یہاں پر خانہ پوری ہے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ جدید تاریخ نویسی کا جو بانی ہے وہ والٹیئر ہے، تو پہلا جو آپشن یہاں پر والٹیئر آ جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے سوال ہے، سائنس اور دیگر عالمی شعبے ڈیش کو موجود مانا جاتا ہے، یہ ہے فلسفہ۔ تیسری جو خانہ پوری ہے، یہاں پر مہابلیشور کے قریب بیلاری نامی گاؤں ڈیش کے لیے مشہور ہے، وہ ہے کتابوں کے لیے مشہور ہے، تو تیسرا جو ہے کتاب آ جائے گا۔ اور بی، یہاں پر غلط جوڑیاں دیکھنا ہے، مندرجہ ذیل میں سے ہر گروپ میں غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ وی کے رجواڑے، تو یہ تو صحیح ہے، جس میں جو غلط جوڑی ہے وہ سوتنتر ویر، یہ جو ہے غلط ہے ان کا۔ دی انڈین وار آف انڈین انڈیپینڈنس، یہ اس کا یہ جو غلط جوڑی ہے۔ اور جو دوسرے میں سے ہے آپشن غلط جوڑی، وہ دین بندھو کا ہے۔ اور یہاں سے تیسرے میں گفا، یہ جو ہے یہ غلط جوڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پر سوال نمبر 2 کے میں جو تصوراتی خاکہ دیا گیا ہے، یہ تصوراتی خاکے کے اندر آپ کو 2 آپشن دیے گئے ہیں۔ بھارت میں عالمی قدرتی ورثے کے مقامات، مغربی گھاٹ اور کازی رنگا قومی پارک دیا گیا ہے، تو آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کیول دیو قومی پارک، اور یہاں پر سندربن قومی پارک، اور یہاں پر آپ کو لکھنا چاہیے مانس کا جنگلاتی مامن، اور یہاں پر لکھنا ہے آپ کو نندا دیوی اور ویلی آف فلاورز قومی پارک، یہاں آپ کو لکھنا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ تصوراتی خاکہ مکمل کرنا ہے، دوسرا پوائنٹ ہے نشستی کھیل میں لکھنا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لکھ سکتے ہیں آپ، ہے نا، لوڈو، تاش، یا پھر آپ شطرنج، کیرم، یہ لکھ دیجیے آپ یہاں پر۔ اور تصوراتی خاکہ دوسرا جو ہے سیاحت ٹورزم کی جو قسمیں ہیں، ایک تو ہے مقامی سیاحت ہے، دوسرا علاقائی سیاحت ہے، اور دوسرا ہے قومی سیاحت ہے، اور دوسرا ہے بین الاقوامی سیاحت ہے، مطلب ہر طریقے سے گھما پھرا جا سکتا ہے، تو اس حساب سے یہ آئے گا مقامی، علاقائی، قومی اور بین الاقوامی، تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اب یہاں سے سوال جواب شروع ہوتے ہیں۔ اصطلاحات ہے، نسائی تاریخ کیا ہے، تفریح کی ضرورت، اور پھر بعد میں کھیلوں کی اہمیت۔ تو نسائی تاریخ کا جو جواب ہے وہ اس طرح سے کہ آزادی سے قبل تارا بائی شندے، پنڈت رما بائی، ڈاکٹر رخما بائی جیسے نسائی مورخ ہو گزرے ہیں۔ ان مصنفین نے گھر میں اور کام کی جگہ پر عورتوں کے ساتھ ہونے والے غیر منصفانہ سلوک اور مرد خواتین میں عدم مساوات کے موضوع پر مضامین لکھے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہم کو لکھنا ہے اس جواب میں، دلت خواتین کے نقطہ نظر سے سماجی طبقے، سماجی رتبے، ذات وغیرہ مسائل کے تعلق سے خواتین نے مضامین لکھے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ لکھنا ہے آپ کو کہ آزادی کے بعد کے دور میں دلت خواتین کی زندگی، سماجی طبقے، ذات وغیرہ پر لکھے ہوئے شرمیلا ریگے کے مضامین کو رائٹنگ کاسٹ، رائٹنگ جینڈر، یا رائٹنگ دلت وومنس ٹیسٹیمونیز نامی کتاب انہوں نے جمع کیا ہے، مطلب اس میں لکھا ہے انہوں نے عورتوں کے مسئلہ مسائل کے بارے میں۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ رہنا چاہیے کہ نسائی مصنفہ میرا کوسمبی نے اپنی کتاب کراسنگ تھریشولڈز اور فیمنسٹ ایسز ان سوشل ہسٹری میں مہاراشٹر کی ڈاکٹر رخما بائی، پنڈت تارا رما بائی جیسی خواتین کی زندگی پر مضامین لکھے ہیں۔ اگلا ہے تفریح کی ضرورت۔ تفریح کی ضرورت کے لیے آپ کو جواب اس طرح سے لکھنا ہے کہ تفریحی زندگی انسانی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی بے عیب نشوونما کے لیے خالص تفریح کی بڑی اہمیت ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے کہ بندی ٹکی زندگی کی ایک طاقت کو دور کرنے کے لیے، دل کو تازگی، خوش اور ولولہ بخشنے کے لیے تفریح ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ اس طرح سے لکھنا چاہیے کہ تفریح دل میں امنگ پیدا کرتی ہے اور کام کرنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ تفریح مشاغل کے ذریعے شخصیت کا ارتقاء کرتی ہے۔ چوتھا اور آخری پوائنٹ اس طرح سے لکھنا ہے آپ کو، تفریح کے ذریعے دل کو سکون اور مسرت حاصل ہوتا ہے، دل کا بوجھ دور ہو جاتا ہے۔
तफरी के ज़रिए हम अच्छे दोस्तों के रब्त में आ सकते हैं, यानी अच्छे बुरे लोगों से मिल सकते हैं। तफरी के बगैर इंसान की ज़िंदगी बेलुत्फ़ हो जाती है। तीसरा जो है वो खेलों की अहमियत है। तो उसका जवाब कुछ इस तरह से लिखना है आपको। जैसे कि देखो, खेलों की वजह से लोग ज़िंदगी की परेशानी और फ़िक्रों को भूल जाते हैं। दिल को खुशी हासिल होती है, जिसकी वजह से दिल मसरूर और पुरसुकून हो जाता है। खेलों की वजह से वर्जिश होती है और जिस्म मजबूत और सडौल बनता है। खेलों की वजह से हमारे अंदर हौसला, इस्तेकामत और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है। और इज्तिमाई खेलों के ताउन और इज्तिमाइयत का जज्बा, कायदाना सलाहियत में इजाफ़ा होता है। तो ये खेलों की अहमियत है। तो इस तरह से ये जो 3 सवाल है, इसके जवाबात आपने देख लिए। उम्मीद है आपने कुछ इस तरह से लिखे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे का पहला है, वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। वज़ाहत करना है, 2 करना है, 4 दिए गए हैं। चारों की वज़ाहत इंशाअल्लाह हम तुमको बताएंगे। देखिए, जवाब कुछ इस तरह से है कि पहला पॉइंट आपको पॉइंट वाइज लिखना है। मारूज़ी हकीकत और वाक़यात की ज़मानी तरतीब मुनासिब होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना था। और उस वक्त की समाजी रिवायात और ज़राअत, तिजारत, माशी निज़ाम पर गौर करना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वॉल्टियर के इस ख़्याल की वजह से एक नया नज़रिया सामने आया कि तारीख़ मुरतब करते वक्त इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए। इस वजह से वॉल्टियर को जदीद तारीख़ नवीसी का बानी कहा जाता है। अगला सवाल है कि यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसे के मुस्तहक़ मकामात, रिवायात की फ़हरिस्त शाये की जाती है। इसका जवाब कुछ इस तरह से होना चाहिए कि हमारे आबा व अजदाद की तैयार करदा फ़नकाराना अशिया और रिवायात हमारा तहज़ीबी वर्सा है। इनके लिए हमारे दिल में अपनाइयत का जज्बा होता है। अगली नस्ल के लिए इन विरसों को महफूज रखना और उनकी निगहदाश्त करना ज़रूरी होती है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट होना चाहिए कि गुज़रते वक्त के साथ ये विरसे ख़त्म ना हो और उनकी हिफाजत के रहनुमायाना उसूलों की मदद से आलमी विरसे के मुस्तहक़ मकामात और रिवायात की फ़हरिस्त आलमी तंजीम यानी यूनेस्को की जानिब से शाये की जाती है। तीसरा सवाल है कि फ़न की तारीख़ का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। तो इसका जवाब कुछ तरह से होगा कि फ़नकाराना अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त का एक अलहदा शोबा होता है। और फ़नकाराना शय असली है या नकली, इसकी धात, लकड़ी की किस्म या उसका मेयार मुनासिब है, ये सारी बातें कोई जानने वाला शख्स ही बता सकता है। फ़नकाराना शय के फ़न के मेयार को एक फ़नकार ही पहचान सकता है। फ़नकाराना अशिया की कीमत का तयन करने के लिए मज़कूरा वाला अमवर की जांच करना ज़रूरी होता है। इसलिए फ़न की तारीख़ का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। चौथा सवाल है कि मुहाफ़िज़ खाने और कुतुब खाने वसाइल और दीगर मतबूआत शाये करते हैं। कुतुब खाने कदीम किताबों का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हैं। जिन दस्तावेज़ात की नुमाइश नहीं की जाती उन्हें मुहाफ़िज़ खाने में हिफाजत से रखा जाता है। ये दस्तावेज़ात हमारा तारीख़ी ख़जाना है जिन्हें लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत होती है। कुतुब खाने में किताबों की तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन पर तहक़ीक़ करने और तारीख़ी हक़ाइक़ दरियाफ़्त करने का काम भी होता है। सारे तारीख़ी वाक़यात, अफ़राद की सवानें और तारीख़ी दरियाफ़्तों की बिल्कुल दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचाने के कुतुब खाने और मुहाफ़िज़ खाने रसाइल और दीगर मतबूआत शाये करते हैं। तो इस तरह से ये चारों सवाल के जवाब आपने देखा। अब इसके बाद सवाल नंबर जो 4 है, इसमें इक़्तिबास दिया गया है दशावतारी ड्रामे, उसके ताल्लुक़ से तकरीबन 1 पेज का एक इक़्तिबास है और उसके बाद यहाँ पर सवालात दिए गए हैं। सवाल है कि दशावतारी ड्रामा किस रियासत के अवामी फ़न की एक किस्म है। तो ये दशावतारी जो है ये महाराष्ट्र, ये पेज पे देखिए इधर पे लिखा है, ड्रामा महाराष्ट्र के अवामी फ़न की एक किस्म है। फिर अगला सवाल है, नाज़िम सबसे पहले किसकी पूजा करता है। तो इसका जवाब है यहीं पर है, नाज़िम जो है सबसे पहले गणेश की पूजा करता है। दशावतारी ड्रामे की वजाहत कीजिए। तो वजाहत करने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो पैराग्राफ है 7वें पेज पे, ये 2 पैराग्राफ आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे।
फिर यहाँ पे सवाल नंबर जो 5 आता है, इसमें मुफस्सिल जवाबात है, 4 दिए गए हैं, 2 करने हैं। पहला है मार्क्सवादी तारीख नवीस की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब है आज़ादी के बाद के दौर में भारतीय तारीख नवीसी में जो नए तर्ज फ़िक्र दिखाई देते हैं, उनमें मार्क्सवादी तारीख नवीसी एक अहम तर्ज फ़िक्र है। कार्ल मार्क्स के नज़रियात पर मबनी जो तारीख नवीसी की गई है, उसे मार्क्सवादी तारीख नवीसी कहा जाता है और मार्क्सवादी में तबकाती कशमकश पर जोर दिया गया है। मार्क्सवादी तारीख नवीसी में माशी निज़ाम में पैदावारी ज़राए, तरीके और पैदावारी अमल में इंसानी ताल्लुक़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है। मार्क्सवादी तारीख नवीसी का खास उसूल हर समाजी वाक़े का आम लोगों पर होने वाले असर का तज़किया करना है। अगला सवाल है कि तहरीरी माखिज़ में कारआमद तरबियत के बारे में लिखिए। बहरहाल अभी सवाल नंबर 5वें का तीसरा हम आपको बता रहे हैं। वाज़े कीजिए कि फ़न के शोबे में कौन सी पेशावराना मौक़े मैसर हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए फ़न के ताल्लुक से कि फ़नून के आलमों को अजायब खानों, दस्तावेज़ात के महाफिज खानों, लाइब्रेरियों, आसार कदीमा के तहक़ीक़ और भारतीय उलूम के मराकज़ में मुलाज़मत मिल सकती है। फ़नून का मुताला करने वाले सहाफ़त के शोबे में काम कर सकते हैं। सनती और तशहीरी शोबे में नेज़ फ़नकाराना अशिया की खरीद व फ़रोख्त के पेशे में फ़नून से वाकिफ़ लोगों की ज़रूरत होती है। और फ़िल्म साजी और ड्रामा स्टेज करने के लिए सजावट, मंजरकशी, अदाकारा, हिदायतकार, फ़ोटोग्राफ़र, रोशनी का इंतज़ाम करने वाले और दीगर फ़नकारों की ज़रूरत होती है। शोबे तबात नेज़ घरों की आराइश यानी डेकोरेशन के सामान तैयार करने में फ़नी महारत और मालूमात के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। ज़ेवरात, धातों और लकड़ियों की आराइश अशिया बनाने, बांस, शीशे, कपड़े, मिट्टी और पत्थरों से फ़नकाराना अशिया और मुजस्समे बनाने के शोबे में काफ़ी पेशावराना मौक़े मैसर होते हैं। अगला सवाल है अखबारात की इब्तिदा से पहले ख़बरें दुनिया में किस तरह पहुँचाई जाती थीं। पहले ज़माने में आज की तरह ज़राए अबलाग नहीं था, तो राजा कोई खबर या हुक्म लोगों तक पहुँचाना चाहता था तो उसके लोगों को गांव-गांव में मुनादी बनाकर भेजा करता था और कोई खबर एक दूसरे को दूसरे से तीसरे को और इस तरह सफ़र करते-करते सब तक फैल जाती थी। राजा का कोई मुस्तकिल नौइयत का हुक्म होता तो सब उससे वाकिफ़ कराने के लिए पत्थर पर कुंदा कर दिया जाता था और उस कुतबे को गाँव के दरमियान हिस्से में रख दिया जाता था और इस तरह से खबरें लोगों तक पहुँच जाया करती थी। अब यहाँ पर तो आपका तारीख ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से आपका जो सियासियात है वो शुरू होता है, हिस्ट्री पॉलिटिकल शुरू होता है। तो जमहूरियत की जो रूह है वो हुकूमत की लामरकज़ियत है। इस खानापुरी में बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थे, तो इसका जवाब है हुकूमत की लामरकज़ियत। और यहाँ पर है किसानों की तहरीक का सबसे अहम मुताला जो है वो ज़राई पैदावार को मुनासिब कीमत दी जाए, ये है। आगे बढ़ते हैं। गलत के लिए वजूहात भी बताना है, तो इसकी वजूहात फ़िलहाल हम आपको नहीं बताएंगे, आप इसका आपके स्टडी मटेरियल से देख सकते हैं। तो ये जो पहला है ये गलत, इसकी वजूहात भी है, पहला और तीसरा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 में देखिए हक़ मालूमात और इलाक़ायत की तारीफ़ हम आपको बता देते हैं। कोई एक लिखना है, हम दोनों बताएंगे आपको। देखिए हक़ मालूमात हुकूमत के लिए के किए गए कामों की मालूमात अवाम को हासिल हो और हुकूमत और अवाम के दरमियान ताल्लुकात इस्तवार हो, बाहमी एतमाद में इजाफ़ा हो, इसलिए 2005 में हुकूमत ने शहरियों को मालूमात का हक़ दिया है। और राजदारी के नाम पर हुकूमती का कामकाज में होने वाली गड़बड़ी को इस हक़ की वजह से आप अब छुपाना बहुत मुश्किल हो गया है हुकूमत के ज़रिए। नंबर 3, हुकूमत के कामकाज में शफ़ाफ़ियत आने और हुकूमत अवाम के सामने ज़िम्मेदार है और इस हक़ की वजह से हुकूमत को ये एहसास होता है और मालूमात के हक़ की वजह से जमहूरियत और शहरियों के हुकूक मज़बूत हुए हैं। हुकूमत के कामकाज में राजदारी का अंसर कम हुआ है। हुकूमत के कामकाज में शफ़ाफ़ियत और खुलापन आने में मदद हुई है। अगला है इलाक़ायत। भारत में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वाले और मुख्तलिफ़ तहज़ीब व रिवायात के हामिल अफराद हैं। जुग़राफ़ियाई तनूँ के साथ-साथ अदब, तालीम, तारीख़, तहरीक के मामलात में भी तनूँ पाया जाता है। हर शख्स अपने ज़बान, रिवायत, तहज़ीब से अपनाइयत महसूस करता है और इसी अपनाइयत से उन सब के तय जज़्बा इफ्तिख़ार पैदा होता है। अपनी ज़बान इलाके की तरक्की को लोग तरजीह देने लगते हैं और इस इलाक़ायत को यानी इलाक़ा परस्ती भी कहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि भारत के नेशनल पार्टी के नाम। तो भारत की जो नेशनल पार्टी है
भारत की जो कौमी पार्टियां हैं या नेशनल पार्टियां हैं वो एक ही बात है, तो यहाँ पर लिखना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसमें 3 पत्तियां बनी हुई है फूल के। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। वैसे इतने सारे पार्टी के नाम है, आपको 4 ही जगह खाली दी गई, तो आप 4 कोई भी लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरी वेब डायग्राम, इसमें लिखा है जमहूरी कदरें। जमहूरी कदरें में सबसे पहले 4 जगह खाली है, तो 4 कोई भी लिख सकते हैं आप। आज़ादी, मसावत, अखवत, इंसाफ या तरक्की या इंसानी दोस्त, है ना। तो ये 4 इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से नताइज का ऐलान होने तक के अरसे में हुकूमत, सियासी पार्टियां, उम्मीदवार और राय दहिंदगान को जिन उसूलों की पाबंदी करना होती है और कौन सा अमल नहीं करना है, इस बारे में उसूलों की जिस फहरिस्त का इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है उसे इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक कहते हैं, यानी उसूल, रूल्स होते हैं कुछ। और इलेक्शन के ज़माने में गलत कामों को रोकने के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ऐलान किया जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ये इस तरह से इसका जवाब होगा। अगला सवाल है कि आज़ादी से कबल ख्वातीन की तहरीक किन इस्लाहात के लिए जद्दोजहद कर रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आज़ादी से कबल ख्वातीन की जो तहरीकें थी वो औरतों के साथ साथ होने वाली जो नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको दूर करना, इनके लिए जद्दोजहद कर रही थी। औरतों का ऐसा साल बंद हो और वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और अवामी ज़िंदगी में औरतों का वक़ार के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। रस्म सती जो थी और बेवाओं की नाकदरी यानी बेवाओं की दूसरी शादी, कसीर ज़ौजगी तरीका और बचपन की शादी वगैरह समाजी रस्मों को ख़त्म करना, ये इस्लाहात के लिए जद्दोजहद औरतें कर रही थी। तो इस तरह से ये पेपर का सोल्यूशन ये यहाँ पर इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये जो पेपर है हमारा तारीख का बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये जो सोल्यूशन है अब आपके पास मौजूद है। अब देखने के बाद ये जो वीडियो है अपने तमाम फ्रेंड्स वगैरह में, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हर कोई देख सके, अपने जवाब टैली कर सके। और ये आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा, जिसमें हम 2020 के जो पर्चे का हल हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहे खान सर अकेडमी। शुक्रिया।